بڑی خبر ہے، بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے حیدر گیلانی افغانستان سے بازیاب ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں، بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے حیدر گیلانی افغانستان سے بازیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 2 سال پہلے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی تھی، اگرچہ کوشش کی جا رہی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے، سیکیورٹی داروں کی جانب سے کہ انہیں بازیاب کرایا جا سکے۔ یوسف رضا گیلانی جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، ان کے بیٹے حیدر علی گیلانی کو افغانستان سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بلاول بھٹو زرداری کا یہ ٹویٹ کہ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغانستان سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو افغانستان کے امبیسڈر کی جانب سے کال آئی کہ ان کے بیٹے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، ایک کامیاب آپریشن کیا گیا ہے اور ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے یہ بیٹے کہ جن کو 2 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا، اب ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ ٹویٹ کہ جس میں ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے امبیسڈر کا یہ فون آیا ہے یوسف رضا گیلانی کو کہ ان کے بیٹے کو ایک کامیاب آپریشن کے بعد بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ان کی خیریت سے متعلق وقتاً فوقتاً اطلاعات ضرور ملتی رہی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغانستان سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ افغان سفیر نے انہیں آگاہ کیا ہے یوسف رضا گیلانی کو، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ کسی آپریشن کے ذریعے ایسا کیا گیا ہے۔ ابھی حتمی اطلاعات سامنے آئیں گی تو مزید پتہ چلے گا کہ کیسے یہ آپریشن کیا گیا ہے اور کیسے ان کی بازیابی عمل میں آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر بھی اغوا کاروں کے چنگل سے نکل گئے تھے، اور اب ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے کہ علی حیدر گیلانی بھی افغانستان سے بازیاب ہو گئے ہیں۔ 9 مئی 2013 کو انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، عام انتخابات ہونے والے تھے، انتخابی جلد سے جلوس ہو رہے تھے، کارنر میٹنگ کے دوران انہیں ڈیرے سے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد آج ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ بازیاب کب کروایا گیا ایگزیکٹلی یہ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اس بات کا اعلان آج سامنے آ چکا ہے جب بلاول بھٹو زرداری نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو افغان سفیر نے فون کر کے ان کے بیٹے کی بازیابی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ انہیں 9 مئی 2013 کو اغوا کیا گیا تھا اور لگ بھگ 3 سال بعد ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ جن میں ان کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو افغان امبیسڈر کا فون آیا ہے کہ ان کے بیٹے کو ایک کامیاب آپریشن کے بعد بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ایک بڑی کامیابی اور ایک بڑی خبر کہ جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغانستان سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو بھی بازیاب کروایا گیا تھا، اور اب ایک اور اہم خبر کہ جہاں پر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغانستان سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان کی بازیابی کے حوالے سے وقتاً فوقتاً یوسف رضا گیلانی میڈیا پر بھی بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپیل بھی کی، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ امید کا اظہار بھی کیا کہ انہیں امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنے بیٹے سے مل پائیں گے۔ اور اب علی حیدر گیلانی افغانستان سے بازیاب ہو گئے ہیں۔ افغان سفیر نے یوسف رضا گیلانی کو فون کر کے اس بارے میں باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ علی حیدر گیلانی 3 سال بعد بازیاب ہو گئے ہیں، افغانستان سے انہیں بازیاب کرایا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے انہیں بازیاب کرایا گیا ہے۔ علی حیدر گیلانی جو کہ 3 سال قبل اغوا کر لیے گئے تھے، انتخابی جلد سے جلوس جاری تھے عام انتخابات سے پہلے، اور اسی دوران ایک کارنر میٹنگ کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، جس کے بعد سے اب تک ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً ان کی خیریت سے متعلق اطلاعات ضرور ملتی رہیں، لیکن ان کے بازیابی سے متعلق کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا رہا تھا۔ کچھ یہ بھی خبریں تھیں کہ پہلے وہ وزیرستان میں رہے ہیں اور اس کے بعد افغانستان انہیں منتقل کر دیا گیا اغوا کاروں کی جانب سے، اور اب یہی خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان سے ہی انہیں بازیاب کرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے شہباز تاثیر سے متعلق بھی یہی پتہ چلا کہ وہ افغانستان میں کافی دیر تک رہے اور اس کے بعد وہاں سے جب وہ نکلے ان کے چنگل سے اور اس کے بعد وہ کوئٹہ پہنچے اور پھر بعد میں انہیں سیکیورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ تو بہرحال ابھی ایسا ہی کچھ واقعہ علی حیدر گیلانی کے معاملے میں نظر آ رہا ہے جنہیں افغانستان سے بازیاب کرا لیا گیا ہے، لیکن اس آپریشن کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر یقینی طور پر یوسف رضا گیلانی کے لیے
साबिक वजीर आजम, जो कि मुतादिद बार मीडिया पर इस हवाले से उम्मीद का इजहार कर चुके और इसके साथ साथ उनकी ये दुआ भी रही और उनकी जानिब से ये इस्तदा भी की गई सिक्योरिटी इदारों से भी और तमाम मुख्तदिर हल्कों से कि वो उनके बेटे की बाजियाबी के लिए कोशिश करें, और अब ये कामयाब हो गई हैं कोशिशें। अली हैदर गिलानी 3 साल बाद बाजियाब हो गए। जी हाँ, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करवाया गया और इस हवाले से बिलावल भुट्टो का ट्वीट सामने आया है। अली हैदर गिलानी 3 साल बाद बाजियाब हुए हैं। अली हैदर गिलानी को PP 200 की इंतखाबी मुहिम के दौरान अगवा किया गया था। इस हवाले से ये इतलात बारहा आती रही कि उन्हें अफगानिस्तान में रखा गया है और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से भी अपील की जाती रही और उनकी जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि उनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए, और अब अफगान हुकूमत की जानिब से आगाह किया गया है उन्हें कि एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उनके बेटे को बाजियाब करवा लिया गया है। अली हैदर गिलानी के जिनको 3 साल बाद बाजियाब करवाया गया है, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अली हैदर गिलानी के जिनको अफगानिस्तान से बाजियाब करवाया गया है। और इस हवाले से इतला दी गई है बिलावल भुट्टो के ट्वीट के जरिए। एक बड़ी खबर को बिलावल भुट्टो के ट्वीट के जरिए सामने लाया गया है और इस हवाले से बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से बाजियाब करवा लिया गया है। यकीनी तौर पर एक बड़ी खबर है। यूसुफ रजा गिलानी जो कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, और इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद अब उनको 3 साल बाद अगवाकारों से बाजियाब कराने में कामयाब हुए हैं। और आपको बताएं कि अली हैदर गिलानी 3 साल बाद बाजियाब हो सके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि अफगान सफीर ने यूसुफ रजा गिलानी को बाजियाबी से मुतालिक आगाह कर दिया है। इंतखाबी जलसे के बाद उनको अगवा कर लिया गया था और उसके बाद आपको ये भी याद दिला दें कि अगरचे उस वक्त इंतखाबी मुहिम जारी थी और ये एक बड़ी कार्रवाई थी जो अगवाकारों की जानिब से की गई, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने उस वक्त भी इंतखाबात से बॉयकॉट नहीं किया था, बल्कि इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने का ही ऐलान किया था। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नौमान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नौमान, जैसे कि अब ये एक बड़ी खबर सामने आ गई है, आपसे कुछ तो इस मुतालिक भी जानना चाहेंगे कि 3 साल इस बाजियाबी के हवाले से क्या क्या कोशिशें हुई, अली हैदर गिलानी को अगवा कैसे किया गया और उनसे मुतालिक क्या क्या इत्तलात आती रही हैं। जी नौमान, सवाल रिपीट कीजिएगा। जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक बड़ी खबर सामने आई है कि अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है, तो अभी तक जो 3 साल का ये अरसा था इसको हम चाहेंगे कि आप थोड़ा समअप करें और अगर इस बारे में भी इत्तलात है कि कैसे बाजियाबी अमल में आई है तो वो भी हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, बिलाखिर 3 साल बाद अली हैदर गिलानी को बाजियाब कराया गया, जिसकी तस्दीक जो है यूसुफ रजा गिलानी ने कर दी है और वो इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उनका कहना यह कि उनका बेटा जो है बाजियाब हो चुका है और इसकी तस्दीक इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी कर दिया। अब जश्न का समा है, उनके घर पर कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये 3 साल कबर 2013 में PP 200 के जो इलेक्शन हो रहे थे, जनरल इलेक्शन थे, उसमें इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है अली हैदर गिलानी को जो है अगवा किया गया था और 3 साल बाद अब बाजियाब कराया गया। इसी सिलसिले में एक सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया था, बिलाल लॉन्ग को, जिसका ताल्लुक जो है वो शुजाबाद से था, जलालपुर पीर वाला सा था, लेकिन वो पुलिस इनकाउंटर में जो है CTD ने उनका इनकाउंटर कर दिया था। अब सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है। इससे कबल जो है आसिफ जरदारी जो है साबिक सदर, वो भी गिलानी के हमरा अफगानिस्तान गए थे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान और दीगर अकाबरीन की भी इस हवाले से मदद ली गई है। अब ये जराए जो है, जराए के साथ साथ जो यूसुफ रजा गिलानी भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनका बेटा जो है अफगानिस्तान से अब बाजियाब हो चुका है। जी ठीक, नुमान बाबर आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर आपको बताएंगे कि अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ईसा नकवी से। ईसा नकवी, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि तस्दीक की गई है, अब से थोड़ी देर पहले अफगान कौमी सलामती के मशीर हनीफ अतमर ने टेलीफोन पर राब्ता किया है सरताज अजीज जो कि मशीर खारजा है उनसे, और उनको ये इतला दी है कि अली हैदर गिलानी को अमेरिका और अफगान फोर्सेस के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में बाजियाब कराया गया है। उन्होंने अभी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की कि किस जगह पर ये ऑपरेशन किया गया और कहाँ से उन्हें बाजियाब कराया गया है। ताहम ये जरूर बताया है कि अली हैदर गिलानी का इस वक्त मेडिकल चेकअप अफगानिस्तान में जारी है और उनको जो जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद उनके पाकिस्तान वापसी के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें उनके यकीनन हमारे सफारत खाने से भी राब्ता कर लिया गया इस हवाले से, तो उनको वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला जो है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आने
के बाद और उसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तो ईसा अभी जो इब्तिदाई मालूमात आई हैं उसमें क्या पता चला है, खैरियत से है अली हैदर गिलानी, और जो उनके टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? जी, जो हमारे जराए हैं उनका यही कहना है कि अली हैदर गिलानी के जो मेडिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिए जा रहे हैं कि यकीनन जिस वक्त वो पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाएगा, अली हैदर गिलानी को वापस वतन भिजवाया जाएगा, तो उसके लिए उससे पहले जो तरीका कार है वो यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनका, अगर नेसेसरी को उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, 3 साल यकीनन वो एक कैद व बंद की हालत में रहे हैं और 3 साल के दौरान उन पर यकीनन इस किस्म के हालात बीते होंगे कि उनको एक फौरी तिब्बी इमदाद और मेडिकल टेस्ट की जो है वो जरूरत है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि ऑपरेशन के जरिए उन्हें बाजियाब कराया गया है, तो ये भी बताइएगा कि अगवाकारों से मुतालिक क्या पता चला, कौन लोग थे जिन्होंने अगवा किए रखा? देखिए, इस हवाले से अभी तक अफगानिस्तान ने कोई जो है वो तफसील पाकिस्तान के साथ उसका तबादला नहीं किया है। इब्तदाई तौर पर जो कौमी सलामती मशीर हैं हनीफ अतमर, उन्होंने खुद टेलीफोन करके मशीर खारजा सरताज अजीज को आगाह किया है इस खबर के हवाले से और उनको बताया है कि हमने अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान से, उन्होंने इलाका भी डिस्क्लोज नहीं किया कि किस जगह पर अफगानिस्तान के किस सूबे में किस इलाके में उनको रखा गया था अली हैदर गिलानी को। तहम उन्होंने ये तस्दीक जरूर की है कि अफगानिस्तान की और अमेरिका की फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में अली हैदर गिलानी को बाजियाब कराया गया है। अब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जारी है, जिसके बाद उनके पाकिस्तान वापसी के लिए जो ट्रैवल अरेंजमेंट हैं वो किए जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। और इसके बाद बात करेंगे, इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बताते चलें, अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है। अफगान हुक्काम की जानिब से दफ्तर खारजा को आगाह किया गया है कि वो खैरियत से हैं और उनके मजीद मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और जैसे ही इस हवाले से वो बेहतर सूरत हाल में होंगे तो उनको पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। अफगान अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में उनको बाजियाब करवा लिया गया है। जी हाँ, अफगान कौमी सलामती मुशीर हनीफ अतमर ने सरताज अजीज से टेलीफोनिक राबिता किया है, ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया और उसके साथ साथ अब आपको बताएं कि ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नौमान बाबर भी हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। नौमान, आप काफी करीब से इस वक्त देख सकते हैं कि क्या जश्न वहां पर जारी है गिलानी हाउस में, तो क्या करवा लिया गया है? आपको बताया कि अब उनका अफगानिस्तान में ही मेडिकल चेकअप भी इस वक्त जारी है और मेडिकल टेस्ट के बाद अली हैदर गिलानी को पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। अली हैदर गिलानी को जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए रिहा कराया गया है। अफगानिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई में अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है। अब उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान भी भिजवा दिया जाएगा। जी हाँ, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी 3 साल बाद अफगानिस्तान से बाजियाब करा लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा है कि अली को अफगानिस्तान के इलाके से एक ऑपरेशन के जरिए बाजियाब कराया गया है। इस हवाले से आपको यह भी बताएं कि अली हैदर की बाजियाबी से मुताल्लिक अफगान सफीर ने टेलीफोन करके साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी खबर दी है। अली गिलानी इस वक्त अफगान हुक्काम के पास खैरियत से मौजूद हैं। अफगान हुक्काम ने सबसे पहले इस्लामाबाद में अपने सफीर हजरत अमल को इतला दी, जिसके बाद उन्होंने साबिक वजीर आजम को इस हवाले से इतला फ्राहम की। बड़ी खबर, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी 3 साल बाद अफगानिस्तान से बाजियाब करवा लिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको बताएं कि दफ्तर खारजा की जानिब से भी अब तस्दीक कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें वापस वतन भी ले आया जाएगा। इस खबर के बाद मुल्तान में जश्न का समा है और इस वक्त बताया यही जा रहा है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के घर के बाहर इस वक्त बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। जश्न मनाया जा रहा है और जल्द ही जब वो वापस आन मिलेंगे तो उस लम्हे का इंतजार किया जा रहा है। अली हैदर गिलानी जिनको 3 साल कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान अगवा किया गया था और ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या कहाँ मौजूद हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन उनकी खैरियत की इत्तलात आती रहीं। कुछ अर्सा ये भी कहा गया कि वो वज़ीरिस्तान में रहे हैं और उसके बाद ये खबरें आई कि अब वो अफगानिस्तान में जा चुके हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान से ही उनको बाजियाब करा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद। इरफान सईद, बताइएगा, अली गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अली हैदर गिलानी को जो हमारे जराए बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के इलाके के करीब से बाजियाब कराया गया है और ये ऑपरेशन
मुश्तरका तौर पर किया गया जो जिसमें अफगान फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज ने इसमें हिस्सा लिया है। और ये बताता चलूं कि गजनी का जो इलाका है ये जनूबी अफगानिस्तान के इलाकों में शामिल है। इसके करीब उर्जगान भी है। और हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त अब्दुल कादिर गिलानी जो कि भाई हैं, बड़े भाई हैं अली हैदर गिलानी के, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, हम आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे, बहुत अच्छी खबर है। आप कहिए कि आपको क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेहरबानी, शुक्रिया। आप एक अच्छी खबर के मौके पर आपने मेरे साथ रब्ता किया। मुझे ये खबर टीवी पे ही पता चली और मुझे निहायत खुशी, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये सच हो जाए। लेकिन अभी जो मुझे थोड़ा सा खदशा है वो ये है कि मैं ISPR की तरफ से एक बयान का इंतजार कर रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान आर्मी इस बात की तस्दीक करके इसको कंफर्म कर दे, तो मैं ये समझूंगा ये मुबारकबाद कंफर्म है। अदरवाइज ये एम्बेसडर टू एम्बेसडर कोई राब्ता हुआ है या कोई ट्वीट चला है, मुझे उस पर दिल की तसल्ली और नहीं हो रही। लेकिन अब्दुल कादिर, इस हवाले से दफ्तर खारजा ने तो कंफर्मेशन कर दी है कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है। देखिए, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं कामयाबी से वो पाकिस्तान आर्मी कर रही है और वो ज़रब अज़ की शक्ल में हो रहे हैं। अगर शहबाज तस्वीर भी रिकवर हुआ है उसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा रोल था, और अगर अली हैदर भी बाजियाब हुआ है, हमें इस चीज की तसल्ली हो जाएगी। अगर आप ISPR से राब्ता करें, फौज के किसी नुमाइंदे से राब्ता करें, सिक्योरिटी नाफिज करने वाली एजेंसी से अगर राब्ता करके इस बात की तस्दीक करवा लें, तो मैं समझूंगा कि ये हम मुबारकबाद वसूल करने के हक में। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, ये फरमाएगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से खुद अफगान हुक्काम की या फिर दफ्तर खारजा की बातचीत हुई है, उन्होंने क्या बताया है अली हैदर गिलानी की सेहत से मुतालिक, खैरियत से मुतालिक? देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त कश्मीर में हैं, जो इलेक्शन के सिलसिले में जिला बाग में कुछ जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। मैं मुल्तान में हूँ, मेरा राब्ता नहीं हुआ अपने वालिद से। मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मुझे पता चले कि उनकी क्या बात हुई है, फिर मैं कुछ आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अल्लाह करे कि ये खबर सच हो, और हमें उम्मीद है, यकीन है कि इंशाल्लाह ये खबर सच ही होगी। अब्दुल कादिर साहब, कितना इंतजार है छोटे भाई को देखने के लिए? ये बहुत इंतजार है, और ये कल 9 मई को उनको 3 साल हुए हैं। आज 3 साल और 1 दिन हो चुका है, और दुआएं भी हैं और उम्मीद भी है, और इंशाल्लाह ताला मैं दिल को यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। अल्लाह ताला आपकी भी दुआएं कबूल करे, और जिस तरह से आपने मुबारक दी है, अल्लाह ताला आपको भी आपकी सुने, हम सब की सुने, और ये हमें जल्दी ये कंफर्मेशन मिल जाए इस अच्छी खबर की। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आपने दुनिया न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम भी दुआ गो हैं, और यकीनी तौर पर ये एक बड़ी खबर है कि अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया है, और 3 साल बाद उनको बाजियाब कराने में कामयाब हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। अफगानिस्तान और अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए उन्हें बाजियाब कराया है अफगानिस्तान के सूबे गजनी से, और उसके बाद अब उनके मेडिकल चेकअप हो रहा है, जिसके बाद उनको पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। इसी हवाले से बात कर रहे थे हम ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद से। जी इरफान सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो इस वक्त हमारी जो अफगानिस्तान में जो हमारे ज़राए हैं उनसे जो हमारा राब्ता हुआ, उनका ये कहना है कि ये जो गजनी का इलाका है जनूबी अफगानिस्तान का इलाका है, और ये शहर जो गजनी है कंधार और काबुल शहर के दरमियान में बिल्कुल वाक़या है। जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया, ये गजनी का नवाही इलाका है जहाँ पर ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल जो साबिक गवर्नर के जो साहबजादे थे शहबाज तासीर, उनकी बाजियाबी भी तकरीबन इस अमल में लाई गई, और इस एरिया में जो बताया जाता है हमें, यहाँ पर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान और अल-कायदा के जो नेटवर्क है, इसका यहाँ पर फर्क है, और यहाँ पर मुख्तलिफ ठिकाने उनके कायम हैं। ठिकानों पर बहुत बाद जो मुश्तरका ऑपरेशन भी किए गए, और इस ऑपरेशन में जो ऑपरेशन किया गया था ये मुश्तरका तौर पर अफगान फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज का था, जिस दौरान अली हैदर गिलानी की जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाजियाबी अमल में लाई गई है। और अब चमन बॉर्डर से तकरीबन ये शहर गजनी जो है ये तकरीबन 275 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि तवक्को की जा रही है कि चूंकि इस वक्त अली हैदर गिलानी अफगान हुक्काम के पास है, और उनकी ये कोशिश है कि अली हैदर को काबुल में